Hi everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of SuperGets Cat. I, Sanjay Singh Tomar, welcome you on this very important session where we are discussing the CAT 2022 Slot 1 QA questions completely. What you need to do is just pause the video when a question is there on the screen, attempt it for 2-3 minutes, and then you can see the solution. Obviously, if you are able to make it, then also see the solution for the alternative approaches. If you're not able to make it, तो फिर आपको देखना ही है. Okay. So in either of the cases, you have to see the solution. Also, we are going to cover all the 22 questions over here. Majority of the methods और majority of questions we would be solving in non-bookish ways, है ना? जो books में solutions होते हैं उससे थोड़े अलग solutions होंगे, थोड़े से improvised होंगे, काफी कुछ वैसे ही होंगे. So go for it. It would be an important exercise for you. So without delaying much, let's begin with the first question of the day, and it is a and b are natural number. A square plus ab plus a is 14. B square plus ab plus b 28. What is twice of a plus b? तीनों में ए कॉमन, तीनों में बी कॉमन. बहुत नेचुरल सा थॉट आ रहा है कि ए कॉमन ले लो सर. टेक ए कॉमन एंड टेक बी कॉमन देयर. Take a common here. A plus b plus 1 is 14. Take b common over here. A plus b plus 1 is 28. So I'm just taking a pause because of what जो blurring हुई थी. So I'm going for 2 cross 7 over here. A को 2 लेना और a plus b plus 1 को 7 लेना is indicating कि b is equal to 4. Is indicating कि b is equal to 4. अगर ये वाली वैल्यूज यहाँ पर मैच कर जाएं तो अवर जॉब इज डन. फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी तो 7 ही है, हमने बी को 4 निकाला है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. LHS is equal to RHS means what are the values we have taken are absolutely correct because कोई ऑप्शन ही नहीं था. रीजन कि ए और बी नेचुरल नंबर थे और ये ए अकेला था और उसका एक ही फैक्टराइजेशन पॉसिबल था 14 का, डेट इज 2 क्रॉस 7. दैट इज व्हाई इट इज ऑलरेडी एवरीथिंग बिकम्स बैलेंस. तो ए का 2 होना, बी का 4 होना, ए का 2 होना, बी का 4 होना, व्हाट इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी? It is 2 times the 2 plus 4. 4 plus 4, 8 is the correct answer. 8 is the correct answer. Go for it. Let's move on to the next question. A trapezium AB side is a side AD parallel to BC. BAD पता है, BC पता है, AD पता है, perimeter of trapezium पता है, area of trapezium बताना है. AD parallel to BC और AD की लेंथ बड़ा है BC से. AD की लेंथ बड़ी है BC से. तो ये मैंने बना लिया भाई AD parallel to BC. AD parallel to BC बना लिया. BAD 90 है, BC 3 है, AD 8 है. यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो. दिस इज 3. रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज 5. ठीक है. थिंक ऑफ अ ट्रिपलेट. एक ऐसी ट्रिपलेट के बारे में सोचो बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ है कि जिसमें 5 आता हो बट नॉट इन द हाइपोटेन्यूज. फॉर एग्जाम्पल 5 को आपने हाइपोटेन्यूज में तो 3 4 5 में देखा है. क्या आपने 5 को कभी एक ऐसी ट्रिपलेट देखी जिसमें 5 इज एक्टिंग वन ऑफ द नॉर्मल साइड मींस आइदर परपेंडिकुलर और बेस? तो आपको सडनली याद आएगा 5 12 13. सो गो फॉर इट. हम तो वेरिएबल लेके तो कर ही सकते थे, बट व्हाट अबाउट डूइंग इट विथ ट्रिपलेट? वेरिएबल लेके करना इज नॉट दैट मच फन. अगर आप डायरेक्टली 5 12 13 की तरफ सोच सकते हो, 5 12 13 की तरफ सोच सकते हो, इट कैन डू वंडर्स. आई डोंट नो कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट आई एम गोइंग फॉर 5 12 13. रेक्टेंगल है तो ये 12, तो ये भी 12. रेक्टेंगल है तो ये. अब बस अगर पेरीमीटर 36 बन गया हो तो वॉट एवर द डेटा वी हैव टेकन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज कैट के मेजर प्रॉब्लम्स तो ट्रिपलेट पर ही बनते हैं. कैट की मेजर प्रॉब्लम ट्रिपलेट्स पर ही बनते हैं, तो ट्रिपलेट्स पर फिर बन गया होगा. तो ये 8 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 12. सो it is becoming 16 24 plus 12 36. Have they also given perimeter 36? I think, yeah, they have also given perimeter 36. So what is its area?
एरिया तो अब हम निकाल ही सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, half into sum of parallel sides, half into sum of parallel sides into distance between them, half into 11 into 12, 66 is the correct answer. So in such a manner, you can save a lot of time, lot of variables, just by having some command over triplets. Okay, because majority of the questions are based on triplet only, as you might be knowing. In a village, the number of male to female पता है, the ratio of number of literate male to literate female भी पता है, number of literate male to, अच्छा, मेल फीमेल का रेशियो भी पता है, लिटरेट लिटरेट फीमेल लिटरेट मेल का भी पता है, इलिटरेट का भी पता है, और एक एग्जैक्ट वैल्यू भी पता है. व्हाट इज दैट? मेल लिटरेट मेल. तो बहुत ही, आई थिंक वी आर गोइंग फॉर ग्रिड, यू माइट ऑल्सो गॉन फॉर ग्रिड. मेल फीमेल लिटरेट और इलिटरेट, मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट, है ना. 3600 मेल्स इन अ विलेज आर लिटरेट. तो लिटरेट मेल की एग्जैक्ट वैल्यू पता है. लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का रेशियो 2:3 है. लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का रेशियो 2:3 है. लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का रेशियो 2:3 है. क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूँ कि अगर 2 इज करस्पॉन्डिंग टू 3600, 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 1800, सो 3 इज करस्पॉन्डिंग टू 5400. ठीक है. अब इलिटरेट मेल और फीमेल का रेशियो 4:3. एक वेरिएबल ले ही लेते हैं, तो 4x और 3x. टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएंगे दोनों मिला के 3600 प्लस 4x, ये 5400 प्लस 3x. और इनका भी रेशियो पता है. जनरली वाई आई हैव गॉन फॉर प्लस, प्लस इज मोर कंफर्टेबल टू अस ना, rather than minus. So we have gone for male female. It is 3600 plus 4x upon 5400 plus 3x. It should be in the ratio. It should be in the ratio 5:4. 12, ये 12,000 डायरेक्ट, और 14,400 प्लस 16x, ये 27,000 प्लस 15x, यहां से ये आ जाता है, तो x इज इक्वल टू, इट्स अ बिग वैल्यू यार, 3600 प्लस 4x, 5400 प्लस 3x. जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी चेक. हो सकता है, व्हाई नॉट. सो 27,000 में से 14,000 चला जाएगा. अगर ये 15 होता, अगर ये 15,000 होता, तो 12,000 आंसर आता, तो 12,600 आएगा. एक्स विल कम आउट टू बी 12,600. एक्स विल कम आउट टू बी 12,600. हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फीमेल. सो 500, 100, 5400 प्लस 3x पूछा है. एक्स की वैल्यू डाल दो बेटा. 5400 प्लस 36,000, 37,800, है ना. गो फॉर इट कंप्लीटली. 42,000 प्लस 1200. आप पूछोगे सर ये 1200 कहाँ से आ गया? मैंने अलग से ऐड कर दिया. हाँ, 37,000 प्लस 5,000 इज 42,000, और 800 प्लस 4 1200. 43,200 इज द करेक्ट आंसर. So how many total females were there? Total females were 43,200. Got it? Absolutely great. Let's move on to the next question. Okay, so let's move on to the next question. What it was, जो अभी हमने किया उसका ही कंटिन्यूएशन में करते हैं. और वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 की, ABCD एक पैरेललोग्राम है. कोऑर्डिनेट उसकी 3 वर्टाइसेस के दे रखे हैं. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस D? अच्छा, सो 4 वर्टाइसेस में से 3 के, आप पहले पॉज करना, देन सी द सॉल्यूशन. 1,1, ये काफी इजी क्वेश्चन रहा होगा. -2,8, ये पूछा है. यू नो कि इन एनी पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब, जो इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वही इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा. मतलब द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स विल कोइंसाइड डेफिनेटली, है ना. तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं और बोल दूं ये इसका मिड पॉइंट है, तो अवर जॉब इज डन.
सो व्हाट इज हैपनिंग, मिड पॉइंट ऑफ टू वैल्यूज इज a प्लस बी डिवाइड बाई टू, है ना? तो डिवाइड बाई टू तो दोनों ही जगह है, तो बस a प्लस बी दोनों का सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से x के कोऑर्डिनेट का सम आ रहा है -1, तो -1 डिवाइड बाई टू, -1/2, तो फिर यहां से भी तो -1/2 आना चाहिए। अब सिंस माइनस डिवाइड बाई टू इज कांस्टेंट थ्रू आउट, कैन आई से कि वॉट एवर इज द सम ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट हैज टू बी द सम ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट। तो ये -1 है, तो इसको फिर क्या रखा जाए 3 के साथ कि -1 बन जाए -4। देखते हैं कितने ऑप्शन बचे। एक। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि सर अभी कहीं गलत ना हो जाए जल्दीबाजी में, तो एक और चेक कर लो। 1 + 8, 1 + 8 आर 9/2, तो मतलब सम 9 आना चाहिए। तो इन दोनों का भी सम 9 आना चाहिए। यहाँ पर 4 है तो 5 चाहिए भाई मुझे। इज इट 5 और नॉट? यस इट इज 5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से वही प्रोसीजर है, आपको खुद से करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना है। मिक्सचर कंटेन लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब एक मिक्सचर है, उसमें लेमन और शुगर जो है वो 1:1 में है। एक न्यू मिक्सचर है, उसको बनाया गया है बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशो 1:2। और न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड द शुगर सिरप। ठीक है। और उनकी क्वांटिटीज का रेशो बताया गया, व्हाट इज द रेशो ऑफ लेमन एंड शुगर इन द न्यू मिक्सचर। अब जो ओवरऑल मिक्सचर बनेगा उसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसके ऊपर बात करनी है। आई एम गोइंग विथ एलिगेशन। पहले वाले में लेमन और शुगर का इक्वल प्रोपोर्शन मींस 1:1, 1:1 लेमन और शुगर। तो शुगर का कंसेंट्रेशन 50%, शुगर का कंसेंट्रेशन 50%। दूसरा वाला जो मिक्सचर है आई थिंक वो पूरा का पूरा ही शुगर है एंड द शुगर सिरप। तो उस पूरी की पूरी शुगर सिरप में शुगर का कंसेंट्रेशन 100%। उस दूसरी वाली शुगर में शुगर का कंसेंट्रेशन आप लोग लिख लेना इफ यू वांट टू राइट। शुगर के कंसेंट्रेशन की बात हो रही है फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में, एंड यू आर मिक्सिंग देम इन द रेशो 1:3। तो ओवरऑल जो मिक्सचर बनेगा उसमें शुगर का कंसेंट्रेशन क्या होगा? अप्लाइंग वेटेड एवरेज और व्हाट डू से एलिगेशन, तो लेट इट इज x%। तो 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 50, 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 50। 100 माइनस एक्स के सामने 1 और x माइनस 50 के सामने 3 हैज टू बी इन द रेशियो। सो 300 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 50। 350 is equal to 4x, so x comes out to be 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 के बाद बचता है 30, 4 7 जा 28, 87.5%। So 87.5% sugar is there. So you will say, sir, this is a very famous ratio, 5 by। अच्छा 12.5% क्या होता है? 12.5% इज 1/8 ना। तो ये 100 से 12.5% छोटा है। तो कैन आई से इट इज टू बी 7/8। जो लोग फ्रैक्शन में बहुत अच्छे हैं उन्हें तो पता है कि ये 7/8 का रेशो है। तो कैन आई से कि शुगर जो है वो 7 है ऑफ टोटल। जो नया मिक्सचर क्रिएट हुआ है, उसमें शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 7/8 है। 7 मतलब 7 शुगर आउट ऑफ टोटल 8। तो 7 शुगर, सो टोटल 8। सो व्हाट कैन आई से कि लेमन इज 1 देन, लेमन इज 1। So what is the ratio of lemon and sugar? 1:7. लेमन एंड शुगर। एलिगेशन से क्या हम वो इक्वेशन से भी जा सकते थे, बट वो नेचुरल फील आ रहा था इसमें एलिगेशन वाला, तो हम एलिगेशन से चले गए। आई होप यू वुड लाइक एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आपके लिए तो अभी भी वही रूल है कि डू वॉच इट, ट्राई इट बाय योर, देन सी द सॉल्यूशन, नॉट अबाउट डायरेक्टली सीइंग द सॉल्यूशन। ठीक है। The average weight of a student in a class increases by 600 gram when some students join the class. ठीक है। The average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the old students. ठीक है। Okay. The ratio of original students to the new students. क्या? एक नया ग्रुप है जिसका एवरेज वेट 3 kg ज्यादा है पुराने एवरेज से,
और उसके आने की वजह से सबका 600 ग्राम बढ़ गया। उसका आने की वजह से ये ये जो नया ग्रुप आया है, ये लोग 3 kg ज्यादा लाए हैं, इनके आने की वजह से सबका 600 ग्राम बढ़ गया। ओके, सो कैन आई से कैन आई से कि सिर्फ 3 kg का एवरेज, सम नहीं, 3 kg का ही एवरेज आया था। एवरेज ज्यादा आया था कुछ लोगों के द्वारा, वो 600 ग्राम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवरऑल टोटल फाइनल फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। जितने लोग अपने पास फाइनली हो गए, उनमें वो 600 ग्राम करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक ग्रुप था वो 3 kg ज्यादा लेके आया था एवरेज में, तो उनके पास लेट सपोज उनका नंबर था न्यू का NN, है ना। तो NN वाले बच्चों के पास 3 3 kg एक्स्ट्रा है, जो टोटल टोटल मतलब NN प्लस एन ओल्ड दोनों में मिला के 600 ग्राम का इफेक्ट डाला है। मतलब इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है मुझे। सो कैन आई से कि दिस इज 1/5, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अपॉन टोटल, न्यू स्टूडेंट्स अपॉन टोटल इज इन द रेशियो 1/5। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू एंड ओल्ड? ये तो सेम सा लॉजिक लग रहा है ना पुराने क्वेश्चन जैसा। न्यू एंड ओल्ड का रेशियो इज 1/4। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल? मतलब ओरिजिनल ओल्ड को पहले रखना है, बाद में इसको 4/1 मार्क करना भाई। यहाँ पर भी आंसर गलत हो सकता था बाद में। शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ लोग आए 3 3 kg एक्स्ट्रा लेके, और पुराने लोग और नए लोगों पर सिर्फ 600 kg एक्स्ट्रा का, 600 ग्राम एक्स्ट्रा का फायदा हुआ। तो इससे एक बात फैक्ट हो गई कि जो नए लोग आए वो 600 डिवाइड बाय 3 kg, मतलब 1/5 हैं। जो नए लोग आए वो 1/5 ऑफ टोटल है। तो नए वाले 1 और 5 टोटल, तो पुराने वाले ओल्ड, पुराने वाले 4, 5 - 1 4। आप चाहो तो इक्वेशन से बना लेना, विच इज प्रिटी इजिली अवेलेबल इन द बुक्स एंड ऑल, बट आई थिंक इसमें इक्वेशंस वगैरह बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। इट कैन बी डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज दिस? ब्लडिंग क्यों हुआ? It is working fine maybe. For any real number, GIF n इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल N तक मूव हो रहा है। 1/5 प्लस n/25 का जो आउटपुट है वो 25 चाहिए, और वो भी समेशन। समेशन 25 चाहिए। तो समेशन जब अगर 25 चाहिए तो ओके, समेशन को 25 चाहिए। कैसे ला सकते हैं समेशन को 25? अगर n को 1 रखता हूँ, 1 रखने पर हाँ, n इज फ्रॉम 1, तो 1 रखने पर ये 1/25 बहुत छोटा नंबर है, तो अभी ये आउटपुट नहीं देगा। 1 का भी आउटपुट नहीं देगा, 0 का ही आउटपुट देगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि n की कितनी, हमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए जहां तक हमें समेशन 25 मिल जाए। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कब तक हमें 0 का आउटपुट मिलेगा। तो हमें 0 का आउटपुट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, जब तक ये 20 ना बन जाए, जब तक n 20 ना बन जाए, सो दैट 25 डिवाइड बाई 25, 25 डिवाइड बाई 25 1 का आउटपुट मिलने लगे। जब तक स्मॉल n 20 ना बन जाए तब तक हमें 0 का आउटपुट मिलना है। जब ये 19 होगा तो 19 प्लस 5 24 डिवाइड बाई 25 का भी GIF कितना आएगा? 0। ओके, सो अनलेस इट बिकम्स 25, 25 के लिए n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 1 से लेके 19 तक तो हमें भाई आउटपुट ऑफ 0 है। आउटपुट हमारा 0 है, तो सम हमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका सम में। 20 से लेके 20 से लेके कहां तक 1 का आउटपुट है ये चेक कर लेते हैं। 20 पर 1 का आउटपुट आ जाएगा। अब जब तक ये 2 ना बन जाए, तो 2 कब बनेगा? 2 बनेगा जब ये ओवरऑल ऊपर 50 बन जाएगा। ओवरऑल ऊपर 50 कब बनेगा? n इज इक्वल टू 45 पर। तो n इज इक्वल टू 45 पर 2 का आउटपुट आने लगेगा। और तो 20 से लेके 44 तक, 20 से लेके 44 तक हमारे 1111 के आउटपुट आएंगे।
20 से लेके 44 तक कितने आउटपुट आएंगे? एक 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 के। तो 20 से लेके 44 तक कितनी टर्म है? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 25 टर्म। तो 25 बार एक एक का आउटपुट आना। तो 25 टाइम्स वन वन का आउटपुट आना मतलब सम इज 25। तो इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। अगर एक एक का आउटपुट 25 टाइम्स आया, अगर एक एक का आउटपुट 25 टाइम्स आया तो बात बन गई, हमें सम 25 ही चाहिए था। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एन वेयर वी विल मूव? वी विल मूव ऑन टू एन इज इक्वल टू 44। बिकॉज एन इज इक्वल टू 44 मूव करने तक हमें क्या होगा? एक एक के आउटपुट 25 बार आ जाएगा, जो कि 20 से स्टार्ट हुआ था। 20 से लेके 20 पर वन का आउटपुट आया। अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो सर एन इज इक्वल टू 20 लेने पर वन का आउटपुट आया, फिर एन इज इक्वल टू 21 लेने पर वन का आउटपुट आया, और ऐसे करके बात 40, एन इज इक्वल टू 44 प्लस 5 49 बाय 25 पर भी वन का आउटपुट आया। ये 25 टर्म्स है कोइंसिडेंटली। और 25 बार जब 111 ऐड होगा तो 25 ही बनेगा, जो कि हमारा आरएचएस है, हमें 25 ही बनाना है। क्वेश्चन 50 होता तो शायद हम और आगे जाते, शायद क्या मतलब जाते ही, टू टू के आउटपुट्स को भी कैरी ऑन करते हैं। ठीक है। सो दैट इज द कोइंसिडेंस कि वो दोनों ही वन वन आया। ठीक है। ट्रेन ए और बी, अगेन द रूल इज सेम कि आप लोग पहले कर लेना। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विद द कांस्टेंट स्पीड्स from x and y respectively. Train A reaches the station Y in 10 minutes, while train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. मतलब बहुत ही सीधी सीधी सी बात है कि ट्रेन ए को तो यहां से यहां जाने में 10 मिनट लगते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है। बट ट्रेन बी पहले कहीं ए से मिलेगी, लेट सपोज पी पॉइंट पर मिलेगी, और उस पी पॉइंट के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में 9 मिनट एक्स्ट्रा और लग जाता है। उस पी पॉइंट से अपने गंतव्य तक पहुंचने में 9 मिनट एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। तो टोटल टाइम बी को कितना लगा यहां से यहां आने में? 9 प्लस समथिंग। तो 9 प्लस समथिंग, एक ऑप्शन तो गया भाई। ठीक है। लेट ये टाइम टी था, वाई से लेके मीटिंग पॉइंट तक आने में टी टाइम था। लेट सपोज टी टाइम लगा, तो 9 प्लस टी आंसर करना है। क्या आंसर करना है भाई? 9 प्लस टी। अब इसमें टीएसडी का एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक लगेगा कि सर अगर दोनों ट्रेन अगर साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रही हैं, दोनों ट्रेन अगर साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रही हैं, इसको बी से मीटिंग पॉइंट तक आने में टी लगा, तो हमारी ए को भी मीटिंग पॉइंट आने में टी लगा होगा। कितने लोग इस बात को समझ सकते हैं? जो समझ गया उसका हो गया, क्योंकि बोथ हैव स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, जहां भी मिलेंगे सेम टाइम तक चल के आए होंगे। बोथ हैव स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, जब भी मिलेंगे सेम टाइम तक चल के आए होंगे, तो ये टी है। टोटल 10 है। 10 सेकेंड्स 10 मिनट्स वॉट एवर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 10 मिनट्स। तो ये फिर सर 10 - टी। अच्छा, बोथ आर मेंटेनिंग देयर यूनिफॉर्म स्पीड। बोथ आर मेंटेनिंग देयर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इस पोर्शन ऑफ जर्नी में जो ए और बी की स्पीड का रेशो होगा, वही इस पोर्शन ऑफ जर्नी में भी ए और बी की स्पीड का रेशो होगा। और स्पीड का रेशो उनके इनवर्स ऑफ टाइम भी होता है। तो मतलब मैं टाइम के रेशो को भी इक्वेट कर सकता हूँ, ए अपॉन बी की जगह बी अपॉन ए। बट क्यों मुझे उसकी टेंशन लेनी? मुझे तो सिर्फ टी निकालना है, एक इक्वेशन बनानी है, टी अपने आप निकल के आ जाएगा। तो आई एम सेइंग कि सर सिंस दे आर हैविंग द यूनिफॉर्म स्पीड, सिंस दे आर हैविंग द यूनिफॉर्म स्पीड, चाहे वो ए से पी जाना हो या पी से बी जाना हो, आई कैन इक्वेट देयर स्पीड का रेशो और देयर टाइम का रेशो। सो आई एम इक्वेटिंग t/9 इज इक्वल टू 10। सेम ही प्रोपोर्शन में तो ले रहे होंगे भाई। अगर वो अपनी स्पीड यूनिफॉर्म रख रहे हैं, तो ए और बी का जो एक पोर्शन में टाइम टेकिंग है, उसी प्रोपोर्शन में तो दूसरे पोर्शन में टाइम टेकिंग होगा। अच्छा, टी नहीं पूछा, 9 प्लस टी पूछा, अदरवाइज मैं क्या करता, डायरेक्ट यही पुटिंग कर देता। तो अब थोड़ी सी क्वाड्रेटिक बना लें क्या? या फिर 9 के ऊपर क्या, 9 के ऊपर 1, इसमें कितना है 9 के ऊपर 1? तो 1/9, 9/1 नहीं है भाई। 9 के ऊपर कितना है ये? 6। तो 6/9, 6/9 और ये 4/6, आर दे इन द सेम proportion? Yes. So t comes out to be 6.
इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। बट 6 आंसर नहीं करना है, हमें t+9 आंसर करना है। तो t+9 इज मतलब 6+9, 6+9 इज 15। 6+9 is 15 is the correct answer from this one. I hope you have tackled it pretty smartly. Next, the average of three integers is given as 13. When a natural number is included, the average of these four integers remains an odd number. What is the minimum possible value of n? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एवरेज अगर तीन इंटीजर का 13 है, तो व्हाट इज देयर सम? 13 into 3। एक इंटीजर आपने n ऐड किया, तो टोटल इंटीजर कितने हो गए? 4। और इनका जो नया एवरेज चाहिए, वो भी एक ऑड नंबर चाहिए। मतलब इनिशियल एवरेज 3 into 13 सम हो गया, सम में एक एन नंबर ऐड किया है, चार नंबर हो चुके हैं, उनका नया एवरेज भी ऑड चाहिए। तो इसकी एन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो 39 + n/4 को ऑड नंबर रखना है भाई। 39 + n/4 को ऑड नंबर रखना है। तो इफ आई गो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो एक इवन नंबर हो जाएगा 40/4। इफ आई गो फॉर n इज इक्वल टू 2, तो डेसिमल में आ जाएगा। इट इज मतलब वी वुड नॉट बी एबल टू कैटेगराइज एज इवन और ऑड। इफ आई टेक n इज इक्वल टू 3, 42/4 डेसिमल आ जाएगा। इफ आई गो फॉर n इज इक्वल टू 4, 43/4 डेसिमल आ जाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू कैटेगराइज इट एज अ ऑड और अ इवन। ऑड इंटीजर भी बोला है उन्होंने, है ना, ऑड इंटीजर भी बोला है। सो इंटीजर वर्ड का बड़ा ध्यान रखना है। तो आई एम गोइंग फॉर n इज इक्वल टू 5। आई एम गोइंग फॉर n इज इक्वल टू 5। 39 + 5 44, 44/4 11। तो हम एवरेज को 11 मेंटेन कर पाएंगे। इवन कम हो रहा है, छोटा नंबर ऐड करने से एवरेज कम होता है। तो n इज इक्वल टू 5 ऐड करने पर हमने एवरेज को ऑड मेंटेन कर दिया। n इज इक्वल टू 1 पर एवरेज जो था वो इवन हो गया था। और बाकी n इज इक्वल टू 2, 3, 4 पर क्या हुआ? एवरेज वॉज नॉट इवन इंटीजर, एवरेज वॉज इन डेसिमल्स, एवरेज डेसिमल में था। इसलिए ये गया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 5। आई होप यू हैव taken the complete essence of this question, है ना? Great. Alex invested his saving in two parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is same as the simple interest earned on the second part at 12% for 3 years. क्या दोनों सिंपल के हैं? 15% 4 साल on the first part is same as simple interest earned on second part at 12%. What is this? So you will say 15 into 4 of part 1 should be equal to 12 into 3% of part 2. So 5, 3, 5 parts 1 is equal to 3 parts 2. So part 1 upon part 2 is in the ratio 3/5. What is his total saving invested in the first part? First part में 3 invested है. And what is the total investment? 8. So 3 is what percentage of 8? 37.5%. Have I taken this question wrongly from somewhere? Is it of cat only? आते हैं भाई। ये तो मतलब मजाक कर रहा हूँ, कैट का ही है। आते हैं 6-7 क्वेश्चन, हमेशा बहुत आसान आते हैं। बियॉन्ड इमेजिनेशन आते हैं 6-7 क्वेश्चन। हम हमेशा टफ टफ के चक्कर में परेशान रहते हैं। और अगर हम इजी क्वेश्चन भी कराएंगे तो अपनी जर्नी 90 परसेंटाइल के अब ले जा सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन करने पर 99 के प्लस ऊपर ले जा सकते हैं। और टफ से डिफिकल्ट क्वेश्चन करने पर 99.9 के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। गॉट इट? सो 15 into 4 60%। मतलब मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया उसे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो 3/5 में है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट 1? तो आप कहोगे सर पार्ट 1 टोटल का कितना है? पार्ट 1 इज 3, टोटल इज 8। 3/8 37.5%। नेक्स्ट।
Find the largest real value of a for which this equation has infinite number of solution. a की बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है जिस पर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। a की बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है जिस पर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, ये मॉड डिनोट करता है डिस्टेंस को। तो लेट सपोज एक क्रिटिकल पॉइंट तो क्लियर है 1 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है x माइनस ऑफ माइनस से। आपको पता है आप यहां पर कहीं भी रहोगे, आप इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर होगे, इन दोनों से सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा, चाहे आप यहां रहो चाहे आप कहीं भी रहो। तो मतलब x, अगर आप इफ यू आर इनसाइड दिस रीजन, इफ यू आर इनसाइड दिस रीजन तो आप हमेशा अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हो, हमेशा अपने आउटपुट को 2 रख सकते हो। क्योंकि अगर आप इसके बियॉन्ड गए तो इन दोनों का सम विल बिकम मोर देन 2, और इसके इधर गए तो भी सम विल बिकम मोर देन 2, बिकॉज आप एक की तरफ टिल्ट हो जाओगे तो इससे ये पूरा डिस्टेंस जाएगा। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, मतलब रहना तो इसी पोर्शन में है अगर हम सम को 2 रख सकते हैं। जिन लोगों ने मॉडुलस अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता है कि इसी पोर्शन में रहना है, बिटवीन द रीजन, बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट्स, जिससे कि आप अपने डिस्टेंस को से दोनों के सम को मेंटेन कर पाओ, दोनों के सम को मेंटेन कर पाओ। तो दोनों का सम मेंटेन तभी होगा जब आप इन दोनों के बीच में रहोगे। क्योंकि अगर आप यहां चले गए तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर आप यहां चले गए तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब मैं इस वैल्यू को बड़ी से बड़ी क्या ले सकता हूं कि दोनों के बीच में आप किसी भी पॉइंट पर रहो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वाई इनफाइनाइट? बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड दिस रीजन द डिस्टेंस इज 2। सो अब मैं इसे बड़े से बड़ा क्या ले सकता हूँ? सर बड़े से बड़ा जब व्हेन दे आर, इनके बीच का खुद का डिस्टेंस से 2 हो जाए, सो डेट अगर ये एक एक मिलीमीटर भी आगे बढ़ेगा तो ये 0.999 मिलीमीटर आगे बढ़ के बराबर कंपनसेट कर जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस 2 बनाना पड़ेगा तभी इनके बीच का ऑलवेज डिस्टेंस 2 रहेगा। तो हाउ कैन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए व्हाट आई कैन टेक टू मेक दिस डिस्टेंस बिटवीन देम एज 2? सर माइनस ए को आप -1 ले लो, बिकॉज -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में डिस्टेंस 2 रहता है, तो ए की वैल्यू 1। -1 और 1 के बीच में डिस्टेंस 2 रहता है, तो अगर आपने a को 1 ले लिया तो x-1, x+1 प्लस x-1 2 हमेशा ही होगा, नो मैटर वट एवर द x यू टेक, नो मैटर वट एवर द x यू विल टेक, इट विल ऑलवेज रिमेन, मतलब इट विल ऑलवेज रिमेन, देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। बिकॉज अगर आप x को इस रीजन में, अगर आप x को इस रीजन में कहीं भी मूव करोगे, फॉर एग्जाम्पल -1 और 1 के बीच में क्या क्या x की वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने x को 0 ले लिया, तो 0 का -1 से डिस्टेंस 1, 0 का 1 से डिस्टेंस 1 है ना, तो 2 आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 ले लिया, 1.5 नहीं 0.5, तो 0.5 का 1 से डिस्टेंस 1.5 यूनिट और यहाँ से 0.5 यूनिट 2 आ गया। ऐसे करके यू कैन मेंटेन द डेटा। ग्रेट। All vertices of a rectangle lie on a circle of radius r। रेक्टेंगल की सारी वर्टाइसेस एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसकी रेडियस r है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल p है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अच्छा, lie on a circle of radius r, all vertices of a rectangle lie on the, if the perimeter of the rectangle is p, what is the area of the rectangle? ठीक है, सर्कल बना लो, सारी वर्टाइसेस वही डायगोनल के साथ कुछ पाइथागोरस वगैरह ही लगाना पड़ेगा। रेक्टेंगल बना लिया, पेरीमीटर पता है, p बाद में यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो बस ये डायगोनल का ही मुझे लग रहा है एल और बी वाला। तो आपने कहा सर ये 2r के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा, है ना? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो अंडर रूट है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो अंडर रूट है, उससे आप 2r इक्वेट करोगे, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप 4r स्क्वायर मेंटेन करोगे अल्टीमेटली। अरे वाह, इट्स अ गुड वन। फिर पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर है सर 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, जो कि हमें p दिया है, तो एल प्लस बी निकल के आ गया p/2, जो कि एल प्लस बी निकल के आ गया p/2। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, एल प्लस बी पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब एल इंटू बी निकालना है।
क्या कुछ समझ में आ रहा है कि एल प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल इंटू बी की जरूरत? अलजेब्रा, अलजेब्रा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इट इज पी स्क्वायर बाय फोर, एंड दिस इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर, should be equal to 2 times of LB. तो p square by 4 minus 4r square is equal to 2 times of LB. तो p square by 8 minus 2r square is equal to L into B. p square by 8 minus 2r square, ऐसा कोई ऑप्शन है? p square by 8 minus 2r square, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक ठाक है, मॉडरेट डिफिकल्टी है, इसको बिल्कुल भी ओवर डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। डुएबल है, गुड वन है, नॉट अ इन द एग्जामिनेशन प्रेशर एज वेल। ठीक है। एबीसी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स इज दैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है लेस देन जीरो। ऑब्वियसली आपको पहले ट्राई करना है 2-3 मिनट। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है लेस देन जीरो, मतलब इमेजिनरी रूट्स की सिचुएशन है, इमेजिनरी रूट्स की सिचुएशन है, फंक्शन क्वाड्रेटिक है। और अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है। नॉन जीरो रियल नंबर है, बहुत अच्छी बात है, मतलब क्वाड्रेटिक मेंटेन हो रही है। अगर ए जीरो हो जाता तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचती। S is the set of all integers such that fm is always less than 0, then S must be necessarily fm। देखो भाई, दो सिचुएशन होती हैं, अगर इमेजिनरी रूट्स हैं और अगर अपनी अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर की ऊपर हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो रहेगी, क्योंकि इमेजिनरी रूट पर इट विल नाइदर टच द एक्सिस नॉर इंटरसेक्ट द एक्सिस। इमेजिनरी रूट पर ना तो वो एक्सिस को टच करेगी, ऊपर से ही निकल जाएगी, है ना? तो अगर इमेजिनरी रूट होंगे तो या तो ये सिचुएशन है कि सर पैराबोला इज ऑलवेज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, और अगर एफ एम को लेस देन जीरो रखना है तो ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एट इमेजिनरी रूट्स, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एट इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स पर यह भी हो सकता है कि एफ एम इज लेस देन जीरो। ठीक है, ठीक है। ABC are non-zero, fx है, s consist of all the integers fm such that fm is less than zero, then s must be necessarily। इस वाली सिचुएशन के लिए बस a नेगेटिव होता, बाकी b और c कुछ भी बने रहे, बिकॉज इन्वर्टेड पैराबोला जो है वो साइन ऑफ a पर ही डिपेंडेंट है, साइन ऑफ a पर डिपेंडेंट है। इन्वर्टेड पैराबोला होना कब डिपेंडेंट है? साइन ऑफ a पर। ईदर द एम्प्टी सेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एम के बारे में बात की गई है, एम के बारे में बात की गई है कि एम में क्या क्या आ सकता है। तो एम में देखो ये वाला केस, या तो अगर ए अगर ए पॉजिटिव हुआ तो फिर ये हमें अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये हमें कभी नहीं मिलेगा। समझना जरा। अरे बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है यार। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो वी विल नेवर बी गोइंग टू गेट एनी वैल्यू जिस पर ये हमेशा लेस देन जीरो रहे। तो ईदर द एम्प्टी सेट, देखो सबसे अलग ऑप्शन था तो वो लग भी रहा था कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो हमें एम की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो एफ एम हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो रहेगा, हमेशा एक्सेस के ऊपर ही रहेगा। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो एफ एम विल ऑलवेज बी लाई देन ग्रेटर देन जीरो, तो कभी भी हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा। और अगर ए नेगेटिव हुआ और अगर ए नेगेटिव हुआ तो हमें हर वैल्यू पर लेस देन जीरो ही मिलेगा। सो ईदर द एम्प्टी सेट और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। व्हाट अ वेरी 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 वेल मेड प्रॉब्लम, वेरी 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 वेल मेड प्रॉब्लम, इजंट इट? कि सर सब कुछ ए डिसाइड कर रहा है, ए का साइन डिसाइड कर रहा है। ए का साइन अगर जीरो से बड़ा हुआ तो हम कभी भी एफ एम को लेस देन जीरो नहीं कभी भी नहीं आएगा। और ए का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो हमेशा ही आएगा। ग्रेट क्वेश्चन, theoretical one। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बैलून, 20 आइडेंटिकल बैलून को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 चिल्ड्रन में, सच दैट ईच चिल्ड्रन विल गेट सम बैलून, हर किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर मिले।
एंड नो चिल्ड्रन गेट एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यू। ऑड नहीं तो इवन, मतलब सबको फिर इवन मिले। किसी को भी ऑड नहीं मिलना मतलब इवन मिलना है, और सम वैल्यू मतलब जीरो भी नहीं मिलना। तो जीरो नहीं मिलना और ऑड नहीं मिलना मतलब ओनली थिंग पॉसिबल इज इवन नंबर्स, 2 4 6 8। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल आइटम्स अक्रॉस चार चिल्ड्रंस C1 C2 C3 C4, distributing 20 identical items across four children C1 plus C2 plus C3 plus C4 20 है, और everyone is receiving an even number. So 2k1 plus 2k2 plus 2k3. Why I have taken 2? क्योंकि इवन रखना है ना भाई। तो इवन रखना है तो k1 plus k2 plus k3 plus k4 should be equal to 10. k1 plus k2 plus k3 plus k4 is equal to 10. k1 k2 k3 k4 का सम कितना आना चाहिए? 10. सो जीरो रख नहीं सकते, तो कहना है इसे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इट। वी वांट द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज n-1 cr -1। अब ड्राइव करने का आज टाइम नहीं है, आप तो ऑलरेडी जानते हो सब। तो 10-1 c4-1 9c3, 9c3 को सॉल्व कर लेना। 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 3, 84। 84 is the correct answer of it. Just mark the 84 and enjoy plus 3. Enjoy plus 3. Have amazing marks, है ना? चलो। तो देखा आपने, मतलब मैंने जितने भी सॉल्यूशन किए हैं, आई हैव टेकन वेरी लेस स्पेस, हार्डली आई हैव टेकन एनी स्पेस, इजंट? ऐसा भी नहीं है कि मतलब दिस इज नॉट एक्चुअल कैट। सो you can also do this, मतलब you can do it even better than what we have done. Okay, great. Let's move on to the 15th. Then before we, okay, so we have come to sum of first n terms of an arithmetic progression का n के फॉर्म में बता रखा है, और nth टर्म को डिविजिबल बाय 9 बोला है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। थोड़ा थोड़ा सा मैथ्स वालों का एडवांटेज भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि nth टर्म जो होती है वो Sn माइनस एस ऑफ n माइनस वन। मतलब अगर मैं इसे बहुत ही ज्यादा छोटा करूं, बहुत ही ज्यादा इजीली लैंग्वेज करूं, तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स को माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो पांचवी टर्म मिल जाएगी। 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो 10वीं टर्म मिल जाएगी। उसी तरह अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो Sn में से s ऑफ n माइनस वन माइनस कर दोगे तो Tn मिल जाएगा। तो भाई ये बड़ा लॉजिक होता था जब हम लोग पढ़ते थे जेई के टाइम पर, कि मतलब इससे तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस किया करते थे। अब तो कैट भी पूछता है ये सब। तो एस एन इज n+2n² और n-1 करेंगे तो n की जगह n-1 और n की जगह n-1। n+2n², n-1 2 times of n² plus 1 minus 2n, n+2n² minus n-1 2n² plus 2 minus 4n, n+2n² minus n+1 minus 2n² minus 2 plus 4n. Oh, everything got sorted out here. 4n minus 1. 4n minus 1. So 4n minus 1 is the nth term. Alright, now the problem is very easy. nth term is 4n minus 1. इसको डिविजिबल रखना है तो क्या n की वैल्यू रहेगी? सो इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ n। तो मल्टीपल ऑफ n में 9 बना सकते हैं, तो 9 बनाने पर 10, 4n वैल्यू 10 हो जाएगा, इंटीजर नहीं है। 18 बनाते हैं तो 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, 4n 19 हो नहीं सकता। 27 बनाते हैं तो 27 प्लस 1 28 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7। n is equal to 7 is satisfying this value. This can happen as it n is equal to 27. Got it? चलो let's move on. नेचुरल नंबर दे रखे हैं x t z, एक्स वाई प्लस वाई जेड पता है, वाई जेड प्लस एक्स जेड पता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो आसान है, आई थिंक वाई कॉमन ले लो, एक्स प्लस जेड 19, 19 तो प्राइम नंबर है, तो एक ही चीज हो सकती है, वाई का 1 होना और एक्स प्लस जेड का 19 होना।
अगर आप एक्स प्लस जेड को वाई को 19 और एक्स प्लस जेड को 1 लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल ख्याल त्याग दो, बिकॉज एक्स टी जेड नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर का सम 1 नहीं हो सकता। सो दिस इज फैक्ट कि वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 19। एक्स और जेड में से कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है, आई विल नॉट माइंड इट। सो यहाँ पर वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो 51 दे रखा है। तो आपने कहा सर जेड कॉमन लेके एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये भी कोई खास बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 3 क्रॉस 17। तो बस जो कंफ्यूजन बचा है वो एक्स और जेड की वैल्यू में बचा है। तो एक्स प्लस वाई, वाई तो फिक्स है ना, वाई तो 1 आ चुका है, वाई 1 आ चुका है। ठीक है, वाई 1 आ चुका है। तो क्या लगता है आपको, एक तो रास्ता आपके पास है कि एक्स प्लस वन को 3 ले लो, हो सकता है x2। तो अगर ये x2 हो जाएगा तो y अपना फिर 17 हो जाएगा, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। अनदर सर, x प्लस वन को 17 ले लो, x प्लस वन 17 हो जाएगा तो x 16 हो जाएगा, x 16 हो जाएगा सर, x 16। तो z फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। y तो हमेशा से ही 1 था, y की तो यूनिक वैल्यू आ चुकी है। दे हैव नॉट आस्क्ड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, उन्हें पता था दो आंसर आएंगे, उन्हें पता था भाई दो आंसर आएंगे। यहाँ पर जेड है ये एक्स। जब मैंने एक्स प्लस वन को 3 लिया था, जब मैंने एक्स प्लस वन को 3 लिया था तो x2 था और अपना जेड 17 था। y तो हमेशा से ही 1 है, ये तो फिक्स है। और जब मैंने सेकंड केस लिया तो x प्लस वन को 17 लिया तो x 16 आ गया, जेड 3 आ गया, y। तो उन्हें पता था भाई दो आंसर है, इसलिए उन्होंने पूछा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो पहले वाले केस से जाता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 17 इंटू 1 34। और दूसरे वाले से जाता हूँ तो 16 3 48। आप क्या मार्क करोगे, 34। मिनिमम कौन है भाई 34 और 48 में से, 34 ही छोटा है, और क्या करोगे, है ना। चलो, गुड, ग्रेट। ये ऑलरेडी डन अ लॉट है ना, 16। मतलब वी आर एट अ स्टेज जहां पर हम, ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? हाँ। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 73 लाइक कॉफी, 80 लाइक टी and 72 like lemonade. It may be possible some students do not like any of the three drinks. अच्छा, जरूरी नहीं है, कुछ लोग उसमें से, it may be possible some of the students do not like any of the three drinks. Then what is the difference between maximum and the minimum possible value of the student who like all the three drinks? अच्छा, तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं ना तीनों ड्रिंक पसंद हो? सर 52। क्योंकि सबसे छोटा सेट ही पूरा का पूरा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेट इज देयर सी एंड इट इज एंटायरली इनटू द इंटरसेक्शन। वन ऑफ द सेट इज देयर, मैं कैसे डायग्राम दिखाऊंगा इसका, कुछ इस तरह कि सर एक सेट था वो पूरा का पूरा ही इंटरसेक्शन रीजन में था, नथिंग अलोन वाज देयर। सो देयर इज अ सेट सी which has the smallest number of elements, which has the smallest number of element, and it is completely in intersection with A and B. It has no उसका खुद का अपना कोई वो नहीं है कि मतलब having only lemonade likers, है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है 52, वो कंप्लीट का कंप्लीट सेट अगर इनके साथ इंटरसेक्शन में आ जाएगा 73 और 80 के साथ, मतलब हर एक बंदा जो कॉफी और टी को लाइक लाइक हर एक बंदा जो लेमोनेड को लाइक कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं कॉफी या उसके पास खुद भी ओनली लेमोनेड वाला एक भी एलिमेंट नहीं होगा। सो मैक्सिमम इंटरसेक्शन आई कैन गेट इज 52। तो 52 मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम सर स्टेगनेंट वाली लेडर अप्रोच से कर लेते हैं कि इनमें मिनिमम इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, कॉफी और टी के बीच में। कॉफी और टी के बीच में मिनिमम इंटरसेक्शन होगा, इनका सम 150 हो 3 हो रहा है तो 53 इज द मिनिमम इंटरसेक्शन। मिनिमम इंटरसेक्शन बिटवीन कॉफी एंड टी इज 53। मिनिमम इंटरसेक्शन बिटवीन कॉफी एंड टी इज 53। सर सी फॉर मिनिमम मिनिमम व्हाट डू यू से। अच्छा, अब देखो, अब दो रास्ते हैं, या तो हम अपने काम को बहुत मेहनत वाला करें कि पहले इनका निकाले फिर कॉमन निकाले, या फिर हम कहेंगे सर सिंस हमें मिनिमाइज करना है, सिंस हमें मिनिमाइज करना है तो बस ये जो 53 कॉमन इंटरसेक्शन बिटवीन ये है, इसमें और इसमें देख लेते हैं
कि कितने हमें अलग से वैल्यूज चाहिए पड़ेंगी, कितनी हमें अलग से वैल्यूज चाहिए पड़ेंगी, एक मिनिमम तीनों में इंटरसेक्शन किस में आएगा। मतलब इसको अगर मैं बोलूं कि टी और कॉफी में इंटरसेक्शन 73, तो टी, कॉफी और लेमोनेड में मिनिमम इंटरसेक्शन 53 प्लस 52 माइनस 100, क्योंकि टोटल तो स्टूडेंट 100 ही है, 105 माइनस 105। तीनों में इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू इज 5। पांच से कम इंटरसेक्शन पे नहीं चलेगा, पांच से कम इंटरसेक्शन पे नहीं चलेगा, तीनों में पांच का इंटरसेक्शन तो होना ही चाहिए। बिकॉज अगर मैं मिनिमाइज भी करूं तो टी और कॉफी में 53 का इंटरसेक्शन आ रहा है, ये 53 को कॉमन कर दूं लेमोनेड के साथ, तब भी पांच का डेल्टा तो क्रिएट हो ही रहा है, बिकॉज लेमोनेड हैज 52 लाइकर्स। तो 53 और 52 का सम भी 105 पहुंच रहा है, तो पांच तो मिनिमम डुअल इंटरसेक्शन में आएंगे ही। आई थिंक इट इज मेकिंग सेंस टू यू। नेक्स्ट। सॉरी 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 सॉरी। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर ए एक्स करके दो वेरिएबल हैं, और a is greater than equal to 0, x is greater than equal to a is greater than equal to what do you say, 100, और fx करके एक फंक्शन है। x माइनस ए मॉडुलस का है, आई थिंक हम एक मॉडुलस का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। x माइनस ए, x माइनस 100, x माइनस ए माइनस 50, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बता रखी है जब a कितना होगा। लुकिंग डिफिकल्ट वन है ना। और आई थिंक सेम टाइप के दो क्वेश्चन आ गए, मतलब इट वाज नॉट अ गुड सरप्राइज इन दैट ईयर कि सेम मॉडुलस के दो क्वेश्चन आ जाना। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जीरो, ए जो है वो जीरो से बड़ा या बराबर है तो मूव कर सकता है, जीरो की तरफ भी आ सकता है। फिर एक्स जो है वो 100 से छोटा है, तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 100 है। और बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट और है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया ए, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 100, और दूसरा हो गया एक्स माइनस ऑफ ए प्लस 50। कहीं ए प्लस 50 और लाई कर रहा है बीच में, कहीं ए प्लस 50 और लाई कर रहा है बीच में, जो एक और क्रिटिकल पॉइंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 100 बताई गई है। बोला गया है कि ये जो अपना एफ ऑफ एक्स है, जो एक्स का इन सब पॉइंट से डिस्टेंस है, मतलब इमेजिनेशन देखना भाई, मतलब कहीं एक एक्स है, उसका हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इससे, इससे और इससे 100 है। ठीक है, तो ए की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है टू कीप दिस 100। बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा रहे हैं कि ए का ए से डिस्टेंस और ए का 100 से डिस्टेंस का जो सम होगा वो 100 माइनस ए होगा। क्योंकि एक्स की पोजीशन कुछ भी रहे भाई, एक्स की पोजीशन कुछ भी रहे, इन दोनों से सम ऑफ डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और वो कितना आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन देम। ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, 100 इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो कैन आई से इट इज 100 माइनस ए। कहीं पर भी एक्स हो, कहीं पर भी एक्स हो, 100 से डिस्टेंस प्लस ए से डिस्टेंस जब आप देखोगे, तो ये वैल्यू प्लस ए वैल्यू, इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस आएगा 100 माइनस ए। अब एक्स का ए प्लस 50 से डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कराना है, एक्स का ए प्लस 50 से डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कराना है। तो अगर मैं एक्स ए पर ले लेता हूं, जो कि हो सकता है, एक्स कैन बी इक्वल टू ए, तो 50 का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट पर ही तो ले जाना पड़ेगा मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अगर मैं एक्स को जीरो पर ले आता हूं तो 50 का डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं एक्स को 100 पर ले जाता हूं, अगर मैं एक्स को 100 पर ले जाता हूं तो ए 50, ए प्लस 50 से ए को आप, अच्छा देखना, व्हाट अमेजिंग क्वेश्चन। अगर आप एक्स को 100 पर भी ले गए तो ए की मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही रखोगे। ए की मिनिमम वैल्यू जीरो रखोगे तो ए प्लस 50, फिर मिनिमम तो भाई ए जीरो ही हो सकता है ना, बोला है उसने। तो ये जीरो रखोगे तो फिर से ये 50 हो जाएगा, तो फिर से मैक्सिमम डिस्टेंस व्हाट यू कैन क्रिएट इज 50 यूनिट्स। तो मतलब आप लिख लेना नोट्स में कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए प्लस 50 इज 50 ओनली, और टोटल का सम बताया गया 100। सो 150 माइनस ए इज इक्वल टू 100। तो ए की वैल्यू, व्हाट अ अमेजिंग, व्हाट अ फैंटाबुल, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था भाई। हो सकता था एग्जाम हॉल में ना हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर एग्जाम हॉल में ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट। बहुत कैलकुलेटिव, वेरी वेरी कैलकुलेटिव, 4 केजी कैशियोज है ना।
प्लस 14 kg पीनट्स, 6 kg आलमंड्स खरीदे हैं तो इनकी सीपी लगेगी। हाँ ना, मैं पहले किया हूँ ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। जहां पर 7 kg की प्राइस जो है कैसियो की, वो 30 पीनट के बराबर है, और वही 9 kg आलमंड्स के बराबर है। इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो, आई थिंक 630, 630 से डिवाइड कर दो तो सी 90, पी 21, आलमंड 70। तो कैश्यू पीनट और आलमंड की जो प्राइस है वो 90, 21, 70 के रेशो में। आई होप आई हैव नॉट डन एनी कैलकुलेशन हैक। ठीक है। तो कैश्यू की प्राइस आप 90 के ले सकते हो, पीनट की प्राइस आप 21 के ले सकते हो, और आलमंड की प्राइस 70 के ले सकते हो। ठीक है। ओके। ये सब अपनी, अगर मैं के फॉर्म में डाल दूं तो के फॉर्म में सीपी आ जाएगी, आई थिंक निकाल लेते हैं, है ना, निकाल ही लेते हैं। वाई टू डिले 90 के। आज फिर भी थोड़ा फास्ट हो रहा है, एक बार मैंने और टाइम लगाया था इसमें। 360 के प्लस 420 के प्लस 294 के। 294 सही है ना, आई थिंक 294 के। 780 प्लस 294 के, 16, 17, एक। ग्रेट। कैलकुलेशन तो है भाई, इसमें दम से कैलकुलेशन है। इट हैज टू बी लेफ्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। 1074 के सीपी आ चुकी है, 1074 के सीपी आ चुकी है। तो मैंने इतना टैकल कर लिया है, ये टैकल कर लिया है, ये टैकल कर लिया है, ये सीपी है, और एमपी जो है वो इस तरह रखी गई। एमपी जो है वो इस तरह रखी गई कि 1752 का प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब एमपी इस प्राइस से, इसमें पेज कम पड़ेगा भाई। एमपी जो है वो इस प्राइस से 1752 बड़ी है। अब उसने 4 kg ऑफ द मिक्सचर को मार्क्ड प्राइस पे बेचा, और रिमेनिंग को 20% डिस्काउंट पे बेचा, और प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ। 4 kg मिक्सचर को एमपी पे बेचा, एसपी निकाल रहा हूं मैं। 4 kg तो एमपी पर बेचा। ओ माय गॉड, कैलकुलेशन लगेगा बेटा। 4 kg एमपी पर बेचा, और टोटल कितना था, 4, 14, 18 और 6, 24 ना। 24 में से 4, 20 kg, 20% डिस्काउंट मतलब 0.8 टाइम्स ऑफ एमपी पे बेचा। और अब जो प्रॉफिट हुआ, वो सिर्फ 744 रुपए ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं एसपी जो है वो सीपी से 744 रुपए ज्यादा है। ठीक है बेटा, वैसे तो क्वेश्चन तो मैंने खत्म कर दिया है, बट ऑब्वियसली आपको लग सकता है कि सर बहुत कैलकुलेटिव हो गया। रफ कर लें अगर, तो मैं एक हिम्मत दिखा सकता हूँ पीछे जाने की, है ना। मैं यहाँ रफ कर ले रहा हूँ, सीपी तक तो सब लोग अलाइंड थे ही निकालने तक। तो एक हिम्मत कर सकते हैं हम इसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की। कैलकुलेटर के बाद तो आई थिंक इट विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम। ओके ओके ओके। ओ माय गॉड, क्या वो सीपी ऑफ ऑल थी? हाँ, वो 1075 जो थी वो सीपी ऑफ ऑल थी। तो सीपी ऑफ ईच निकालनी पड़ती। तो सीपी ऑफ ईच जब निकालनी पड़ती तो डिवाइड बाय 24 करना पड़ता शायद। हाँ, यहाँ क्योंकि वही डिफरेंस आ रहा था ना, वही डिफरेंस आ रहा था कि यार इतना बड़ा के कैसे आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं तो हो सकता है। शुड आई यूज द कैलकुलेटर, और आई शुड डू इट लाइव?
कर लेते हैं यार, कहाँ कहाँ परेशान होंगे। हटाया इसको। फिर 47 6 7 42 54, 179 के प्लस 6 दूनी 12, 55, 6 9 में 54, 6 दूनी 12। अरे वाह, हो रहा है भाई सॉल्व। प्लस 16/24 ऑफ 1074 के प्लस 1752, 2/3, 179 के प्लस 292 इज इक्वल टू 2/3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है। 716, 1100, 100। ठीक है, बस होने वाला है सॉल्व। सो ये मिलके बन गया 716, 816, 916। 916 में से 20 गया तो 800। 916 में से 916 में से 20 गया तो 916 में से 20 गया तो 896। एक और गया तो 895 के। ये 8 और 9 10 बन गया। फिर 9 6 15 और 1 16 बन गया। फिर 1 2 2 4 बन गया। फिर और ये किसके बराबर है? 1074 के प्लस 744। ये इधर माइनस हो जाएगा, ये यहाँ कैलकुलेशन आप खुद से करोगे ना। आई होप आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, ठीक है। सो ये बेटा 105 प्लस 74, 105 प्लस 74 जो बनेगा 179 के LHS में आ जाएगा। और इधर RHS में थोड़ी देर के लिए मैं इसे 750 ले लेता हूँ तो 250 प्लस 460, 250 प्लस 460, 560, 660, 710 है ना। 710 ले लिया। 710 प्लस 6 और 710 प्लस 6, 716। ठीक है, 4 बार जाएगा शायद। हाँ, 4। के की वैल्यू 4 आ गई। के की वैल्यू 4 आ गई तो अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग आमंड्स। आमंड्स 6 थे। और बस पुराने पेज पे जाके लेना एक आमंड की वैल्यू कितनी आई थी। रिमेम्बर, याद है क्या? एक आमंड की वैल्यू आई थी शायद, वट एवर इट इज, 60 के, 90 के, 61 के। तो वहीं पर वो वैल्यू डाल के, अरे ये रही ना, 70 के। 70 के मैंने सही चीज बचा के रखी भाई, 4। तो 60 × 280, 1680 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलो चलो। इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन भाई, हद है मतलब, नेक्स्ट लेवल। I hope ये conceptual हो। Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of number of standing ahead of Pinky to the number of students standing behind her in the queue is in the ratio 3:5। तो पिंकी के आगे 3x, पिंकी के पीछे 5x, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 5x प्लस 3x प्लस पिंकी खुद एक और। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 8x+1। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 8x+1। और ये जो स्टूडेंट है वो 300 से छोटे हैं। तो x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हमें पिंकी के आगे वाले मतलब 3x को मैक्सिमाइज करना है, 3x को अगर मैक्सिमाइज करना है तो x को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो x को मैक्सिमाइज करेंगे, तो x को मैक्सिमाइज करने के लिए 8x शुड बी लेस देन 299, x शुड बी लेस देन 299.8। तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 के बाद 59, 8 7 जा 56,
56 80 37 point something, 37 point something. Students cannot be in decimal, है ना? Students cannot be in decimal. X की वैल्यू 39 37 point something आ रही है, 37 point something अगर x की वैल्यू आ रही है तो maximum number of students can be x की maximum value will becomes out to be 37. So what is the पिंकी के ahead वाले लोग? How many students are ahead पिंकी? 3x. So 3x की maximum value is 3 into 37. It's a very famous number. It's a very famous number, triple one. Triple one is the correct answer of it. प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन जो लोग नहीं करना चाहते वो छोड़ सकते हैं. हाँ, बाकी वी आर टिल द वेरी एंड नाउ. Amal buy 10 no, juice syrup beings 120 20% less costly than juice per kg he sell. Okay. क्या करे भाई, वही एक्स वाला. कौन सस्ता है? सिरप जूस से. तो जूस अगर 100 के का है तो सिरप इज 80 के. पर वाला ना, पर केजी. तो छोटा कर ले थोड़ा, 5 के और 4 के. 5 के और 4 के. जूस कितना खरीदा है? जूस कितना खरीदा है बेटा? 120 के जी. तो 600 के हो गई इसकी सीपी. और सिरप कितनी खरीदी है? 110. तो 440 के हो गई इसकी सीपी. ओवरऑल सीपी आ गई 1040 के. ओवरऑल सीपी कितनी आ गई? 1040 के. ओवरऑल सीपी ऑफ द मिक्सचर आ गई 1040 के. 10 के जी ऑफ द सिरप को, अच्छा इंडिविजुअली डील करना है. तो 10 के जी को तो निकाल दिया. तो 10 के जी को निकाल दिया. तो बहुत सारी लैंग्वेज है. 10 के जी को निकाल दिया 20% प्रॉफिट पर. तो 20% प्रॉफिट मतलब 20% प्रॉफिट नहीं, 10% प्रॉफिट. तो 4.4 के पर. तो 44 के तो पैसा यहां से आ गया. और 20 के जी जूस मतलब, अच्छा 100 बचा लिया भाई, इसलिए किया ये सब. तो 20 के जी जूस निकाल दिया अपना 20% प्रॉफिट पर. तो 5 का 20% के 6 के पर. अच्छा किया उसने, आपके लिए अच्छा किया है बेटा. तो डोंट सी हिम एज अ विलन. 120 के यहाँ से निकाल लिया. तो अब बचा अपना 164 के. पैसा तो अभी कमा लिया है. 164 के पैसा कमा लिया है अभी. इतनी जो सीपी थी उसमें से 164 के की सेलिंग हो चुकी है. 100 केजी बचे हुए हैं दोनों लोग. मतलब इक्वल क्वांटिटी में. इक्वल क्वांटिटी में बचे हुए हैं. ओके ओके. हाँ ठीक है. इक्वल क्वांटिटी में बचे हुए हैं 100 100. तो मतलब 200 क्वांटिटी अपने पास बची हुई है. तो अगर इसमें से 200 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं, अगर इसमें मैं 200 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगी 30832 इंटू 2 से. 4 6 8 दूनी 16. 61640 61664. इतना पैसा और आ जाएगा बचे हुए से. इतना पैसा और आ जाएगा बचे हुए से. और ओवरऑल 64% का फायदा हुआ है. तो हमारी सीपी इज बेसिकली 1.64 टाइम्स ऑफ 1040 के. करना चाहे तो कर सकते हैं, आपके पास भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर रहता है. कम से कम ये वाली छोटी मोटी चीजें तो कर ही सकते हैं. यही कर सकते हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते. इट इज बिकमिंग 1705.6 के, है ना? ठीक है. तो यहां से इतना सेलिंग प्राइस आ गया, यहां से इतना सेलिंग प्राइस आ गया, दोनों सेम चीज पे जा रहे हैं. इक्वेट कर दो. 107.56 के should be equal to 164 के प्लस 61664. ओ माय गॉड. इसमें से ये माइनस कर दो. इसमें से ये माइनस कर दो और डिवाइड कर दो, है ना? इसमें से ये माइनस करके डिवाइड कर दो. 1705.6 माइनस 164. 1541.6 के
इज इक्वल टू 61664, होपिंग कि इंटीजर आ जाए। आना ही चाहिए अगर क्वेश्चन सही बनाया गया है तो, या फिर हमसे कोई कैलकुलेशन हैक नहीं हुआ है तो। 40, yes. K has come out to be 40. K has come out to be 40. So what is the Amal cost price for syrup per kg? सिरप पर केजी पूछा है, तो सिरप है अपनी 4K पर केजी। सो इट इज 4K, के की वैल्यू 40, 160 रुपीज पर केजी। कैलकुलेटिव था, मे बी हो सकता है छोड़ने के लिए दिया हो, मे बी हो सकता है करने के लिए दिया हो। सो इट्स ओनली अप टू यू, है ना। Yeah. A is the largest positive integer that divide all the number of the form 3 की power k, 4 की power k, 5 की power k, where B is the largest positive integer that divide all the number of the form 4 की power k, 3 into 3 की, and what is the k is any positive integer. K is any positive integer, A plus B is equal to, सारे नंबर को डिवाइड करना, सारे नंबर को डिवाइड करना मतलब k इज इक्वल टू 1 पर भी काम करे। तो k इज इक्वल टू 1 पर क्या दे रहा है, ये k इज इक्वल टू 1 पर दे रहा है 3 प्लस 4 प्लस 5, 12। k इज इक्वल टू 2 पर क्या दे रहा है, 9 प्लस 16 प्लस 25, 40, कितना दे रहा है, 50, 50। सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट, अच्छा वैल्यू तो हमेशा इवन ही आएगी ना, क्योंकि सर ये ऑड रेज टू एनी पावर ऑड, ऑड रेज टू एनी पावर ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन, इवन रेज टू एनी पावर इवन, तो इवन ही आएगी। तो 12 और 50 का व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे तो लग रहा है 4 भी नहीं है, इट इज ओनली 2। सो दैट नंबर ए इज 2। दो से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं जिससे हम गारंटी से कह पाए कि वो सारे नंबर ऑफ दिस फॉर्म को डिवाइड कर लेगा। देर इज नो सच नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 जिसको हम कह पाए कि वो सारे क्योंकि 12 पर ही, 12 पे प्रॉब्लम कर जाएगा, 50 पे प्रॉब्लम कर जाएगा, फिर आगे कहीं प्रॉब्लम कर जाएगा। सिमिलरली के इज इक्वल टू 1 पर अगर ये क्वेश्चन लेते हैं, 4 की पावर के प्लस 3 इंटू 4 की पावर के प्लस 4 की पावर के प्लस 2, के इज इक्वल टू 1 पर जाते हैं तो 4 प्लस 12, के इज इक्वल टू 1 पर जाते हैं 64, 4 प्लस 12 प्लस 64, 80। तो 80 लग रहा है भाई मिनिमम, के इज इक्वल टू 1, 80 आ रहा है। अगर आप के इज इक्वल टू 2 पर जाओगे तो 80 का अगर मल्टीपल आ गया, 80 का अगर मल्टीपल आ गया तो बात श्योर शॉर्ट है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 4 की पावर के अगर आप कॉमन निकाल लो, 4 की पावर अगर आप के कॉमन निकालो तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा, यहाँ से 3, और यहाँ से 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा। के कॉमन निकालिए, दो पावर बच जाएगी, 16, 3, 19 और 20। तो जैसे k इज इक्वल टू 1 पर 80 आया, व्हाट विल कम ऑन द k इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 2 पर क्या आ जाएगा, 16 इंटू 20, 16 इंटू 20, 320, 320 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 80। सो कैन आई से b इज 80, कैन आई से b इज इक्वल टू 80। सो a is 2, b is 80, what is the what is the largest possible value of a plus b, 82, 82 is the correct answer. Okay, with this, we are winding up the session. It was, I hope it would have been very helpful for you. Please do watch it as much times as you want to do it. Do let us know about the feedback of the session in the recordings as well later on. Also, please follow for more upcoming recordings which are aligned. Do them methodically. Note down all the different solutions which were not in the books and all. ठीक है, उन सबको नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो, uh, understand few different solutions, few different key steps which plays a major role. Okay, all the best, take care of yourself, have a great time, है ना, see you.